So I welcome you to the last session of this particular course and probably your last session for your entire bachelor's. Uh, what we are going to cover is India's services sector. We are definitely expecting a question on this reading, and this reading is yes, it is humongous, but and it is also a lot of data that is given. So what I will do is I will tell you that which data points are more important as compared to others, and what you need to remember from this particular reading. Okay, so and this particular reading is extremely crucial. I can't emphasize this enough. It's extremely crucial if you are a civil services or a RBI or a Indian Economic Services aspirant, बिकॉज कोई और रीडिंग जो है, कोई और किसी भी बुक में आप चले जाओ, सिविल्स की कोई भी आप किताब खरीद लो, किसी के अंदर भी इससे अच्छे तरीके से नहीं दे रखा क्या कहते हैं आपका सर्विसेज सेक्टर का पूरा एनालिसिस. So we'll start with the as we go in all our classes. What we will do is I'll give you first a brief of the reading and then we will go through the reading page by page. Now ये रीडिंग स्टार्ट किससे करती है? सबसे पहले हमें करना क्या क्या है इस रीडिंग के अंदर, एक बार ये देखते हैं. थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग. ओके, नाउ सो one of the things that you should know is the services sector and its role in the Indian economy. I call this as role or importance in the Indian economy. Now, how do you define a particular sector's role and importance in the economy? That is usually seen by certain parameters. वो parameters कौन कौन से होते हैं कि GDP के अंदर contribution कितना है उस particular sector का. Then you can talk about कि एम्प्लॉयमेंट में कितना है, FDI में कितना है, एक्सपोर्ट्स में कितना है, या एक्सपोर्ट्स के साथ साथ ट्रेड में कितना है, वैल्यू एडिशन में कितना है. सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स दैट यू चूज to define the importance or the role of a particular sector in the economy, and we will see this for the entire services sector कि इन सब में इंडिया के सर्विसेज सेक्टर का क्या रोल रहा है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेजर एम्फेसिस के बारे में बात आनी शुरू हो जाती है इस रीडिंग में, जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिया का विद इन द कॉम्पोजिशन. तो हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, डीकॉम्पोजिशन में जा रहे हैं. डीकॉम्पोजिशन of services sector. I'll tell you a mnemonic जिसके थ्रू I remember services sector के क्या क्या portions हैं. I call them as, again this is something very personal, जो जिस तरीके से GDP का डेटा गिवन होता है, RBI जिस तरीके से कोट करता है उस तरीके से मैंने उसको याद करा हुआ है. And that is how I usually help my students appearing for these competitive exams कि how you should know decomposition. There is something called as TC, TH, FIRB and CSP. अभी सिर्फ लिख लो. I'll tell you what these acronyms are. ये बेसिकली कॉम्पोजिशंस हैं कि आपका जो सर्विस सेक्टर है वो उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं. इसके अंदर आप प्लस कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो क्योंकि RBI जो है वो कंस्ट्रक्शन को सर्विसेज सेक्टर के अंदर इंक्लूड करता है. So this is TC is transport and communication, TH is trade and hotels and restaurants, FIRB is financial, insurance, real estate and business services, CSP is communities, social and public services, and plus construction. So these are your overall sectors. तो हम इनके अंदर की बात करेंगे कि इनके अंदर कैसे डेवलपमेंट हुआ और कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर. एंड वी विल सी कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत बड़ा एक बूम है. ये ट्रेडिशनली हमारा जो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बट अब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं these new age areas of financial services, business services, real estate services, construction services. All of these have now taken prominence in the current era. So we are going to talk about that. Then we will also be talking about role of services in external sector. एक्सटर्नल सेक्टर में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ट्रेड के अंदर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यू विल सी दी बल्क ऑफ एक्सपोर्ट दैट वी डू
अराउंड 60% प्लस एक्सपोर्ट जो टोटल अगर आप देखोगे इंडिया का, दैट इज सोर्स फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर। तो वो कहाँ से सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से सर्विसेज के अंदर हमारे पास मेजर कंपैरेटिव एडवांटेज है। So I'll link it to the comparative advantage theory. I'll talk about something called as a revealed comparative advantage in general. And WTO के अंदर there is something called as mode, there's something called as GATS, जिसके हमारे बारे में बात करेंगे, General Agreement of Trade and Services, जिसके अंदर 4 मोड्स होते हैं और उसके अंदर कहाँ पर हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है और कहाँ पर बाकी दुनिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है और हमें किस तरीके से अपने सर्विसेज को एक्सपैंड करना है। Then we are also going to talk about the relationship between how services sector is also important for other sectors. This interlinkage, this interdependence between sectors is what we are going to also see, that why is all of this important. Services is also important for manufacturing industry, और उसमें अभी भी हमारा जो रोल है बहुत कम है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट स्टॉप एट जस्ट प्रोडक्शन, यू हैव टू सेल दैट कमोडिटी, ठीक है। सो सेलिंग इज अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है। सो यहाँ पर बहुत सारा अभी भी लेक्यूना है कि जो ओवरऑल विद इन मैन्युफैक्चरिंग हम सर्विसेज को और अच्छा करके आईटी इनेबल करके हम दे सकते हैं। टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के अंदर एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है बिजनेस ऑफ ड्रग्स। बिजनेस ऑफ ड्रग्स के अंदर आई टोल्ड यू टू वॉच अ पर्टिकुलर एपिसोड विच इज बेस्ड ऑन मैरिजुआना। उसके अंदर देखो कि किस तरीके से प्रोडक्शन कमोडिटी का, ठीक है, अल्टीमेटली उससे ये लोग उसके वेप्स भी बनाते हैं और बेचते हैं, बट इट इज़ नॉट अ अगर आप उस मेजर वैल्यू एडिशन देखो तो वो प्रोडक्शन में नहीं है, उसकी सेलिंग के अंदर है। किस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, किस तरीके से आपने एआई यूज़ किया है, मशीन लर्निंग यूज़ करी है कि बेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है आपका, एंड उसके बाद किस तरीके से आप उसको मार्केट कर रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड टू सेल इट। सो a lot of these other the fact that manufacturing itself requires a lot of assistance from services sector, which in India is kind of missing. We have these Amazons, पर उनका भी जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा कोई क्या कहते हैं ओपन नहीं है। In fact, you might have heard about this particular allegation against Amazon, which has been there in a number of cases, कि Amazon एक सेलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, विच इज़ कॉल्ड एज क्लाउड टेल। सर्च करना है इसके बारे में, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो बेसिकली Amazon अपनी ही कंपनीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करके उनको टॉप रैंकिंग में दे देता है, एंड इट प्राइसेस आउट द अदर मैन्युफैक्चरर्स। ऐसे ही बिग बास्केट भी कर सकता है कि अगर आप इस बास्केट खोलोगे तो उसके अंदर उसके प्रोडक्ट सबसे पहले आ रहे हैं, फिर बाद में उसका एल्गोरिथम बाकी सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। सो अगेन दीज आर नॉट ओपन प्लेटफॉर्म्स पर से, वो जो न्यूट्रलिटी की बात है वो नहीं है। सो जस्ट दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में to add services to manufacturing. You take the example of because I have a small kid, I can see the example of something like Mama Earth हो गया, या फिर there are number of good wipes available, या clothing के लिए बहुत सारी चीज़ें available हैं। So ये सारी चीज़ें again this is manufacturing plus services. So we'll see that linkage and where these linkages are failing in case of India. And finally we will talk about COVID and impact on the services sector and the new sector that has emerged within because of COVID, जो work from home हम देख रहे हैं, ये जो नया हम चीज़ देख रहे हैं जिसके अंदर इंडिया के पास एडवांटेज हो सकता है, बट ऑल ऑफ दैट एडवांटेज कैन ओनली बी रीप्ड इफ इंडिया हैज़ अ गुड data protection law. We'll talk about that data protection law. So this is the overall framework of the entire chapter. That's why this chapter is a little difficult, क्योंकि इसको आपको framework में डालना बहुत ज़्यादा important है कि क्या क्या बात हो रही है. And once you have the framework, then you can put in choose the data points that you want. Ultimately आपको इस particular reading को भी 2 pages के अंदर ही डालना है, ठीक है, 2 sides के अंदर डालना है, so that you are able to efficiently remember it and then reproduce it in your examination. Now let's start. So
इफ़ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, तो अगर हम सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो इंडिया की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है सर्विसेज का. इनफैक्ट वी आर अ सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी, अ सर्विस लेड इकोनॉमी. 1991 के बाद अ मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ दैट हैज़ कम अप इज़ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रॉम द सर्विसेज सेक्टर, वेयर सर्विसेज सेक्टर हैज़ ब्रॉटन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ. एंड इंडिया का इंटीग्रेशन जो है विद द वर्ल्ड हैज़ बीन done because of the services sector. India is now called as world's back office as well, but now in COVID times it is also called as the off-site office of the world, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे off-site आपकी services खुलने शुरू हो गई हैं, तो because of this new phenomena of work from home. So therefore it has also helped in integration of Indian economy with the rest of the world. Then ये आपको ये पैराग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस ऑल्सो पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि इस रीडिंग में क्या क्या बात करी हुई है. देखो, हम सबसे पहले ग्रोथ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ट्रेड, कैपिटल फ्लोज के बारे में बात करेंगे. फिर उसके बाद बात करेंगे सर्विसेज का रिलेशन विद मैन्युफैक्चरिंग. फिर उसके बाद बात करेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ट्रेड, जो हम गैट्स वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, वो हम यहाँ पर भी बात करेंगे बाय द वे. एंड फाइनली इंडिया का इंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल एंड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड COVID का impact. So this is the overall framework of the reading. Not all sections are equally important. I'll tell you what all is important. Now ये बहुत important portions हैं जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे आपका सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ रहा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स. एंड इफ़ यू सी सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ ओवरऑल, अगर आप CAGR ग्रोथ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखो, तो 2000s के बाद ये 2000 से 2016 के बीच के अंदर सर्विसेज सेक्टर का मैक्सिमम ग्रोथ रहा है. तो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज 8.7% का ग्रोथ रेट रहा है ऑफ द सर्विसेज सेक्टर between 2001 and 2016. This is one data point that you need to remember, and this is much larger than the other sectors. See, agriculture का growth rate and industry का growth rate. So that means ये जो आपका overall GDP का growth rate है for these 15-16 years has been pulled by the services sector. If you go for a little disaggregation or decomposition within the services sector, the driving sectors in the economy has been communication. I'll tell you why communication, because इस sector के अंदर बहुत ज़्यादा FDI आया. You have these Vodafones coming, and then you had Hutchison coming, then आपके पास बाहर से और कंपनीज आई थी, and then टेलीकॉम बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारी कंपनीज आई. बैंकिंग सेक्टर खुल गया है जिसके अंदर FDI आ गया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत सारे खुल गए हैं. देन इंश्योरेंस के अंदर यू हैव अगेन FDI हैज़ ओपनड अप, सो 49% FDI ओपन अप हुआ है. कंस्ट्रक्शन के अंदर बाहर की कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई हैं इंडिया के अंदर काम करने के लिए. एंड ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर समथिंग लाइक योर Amazon, जो ट्रेड के अंदर काफ़ी काम करती है. योर रिटेल के अंदर फॉर एग्जांपल यू हैव दीज कंपनीज लाइक अगेन FMCG कंपनीज आ गई आपकी, फॉर एग्जांपल रीपॉक या फिर आपका नाइकी और दीज क्लोथिंग कंपनीज. तो इन सारे एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी सारे इन सारे एरियाज़ की वजह से हमारा सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ हुआ. वेयर एज जो ट्रेडिशनल सर्विसेज होती हैं, जो रेलवेज़ हैं, जिसको हम अगेन कम्युनिटी पब्लिक सर्विसेज के अंदर आ जाता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ये कम स्पीड से ग्रो करें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ऑफ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, इसकी वजह से आपकी एयर ट्रांसपोर्ट जैसे सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी तेज़ तरीके से द ग्रोथ हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप इन दीज पर्टिकुलर सर्विसेज. देन सो इफ़ यू सी दी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये हुआ आपका ग्रोथ का. एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ के अगर आप देखोगे तो सर्विसेज का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रोथ के अंदर एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर सेक्टर्स. सो शेयर इन GDP अगर आप देखोगे तो शेयर इन GDP भी ये चीज़ दिखा सकता है. शेयर इन GDP इन एग्रीकल्चर डिक्लाइन बाय 30% बिटवीन 1980 टिल 2016 फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का जो शेयर GDP में है वो इतनी तेज़ी से गिरा है. वेयर एज सर्विसेज का शेयर जो है, इफ़ यू इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, देन सर्विसेज का शेयर जो है वो 23% से बढ़ा है. और सर्विसेज आज की डेट में 2016 का अगर हम डेटा देखें तो 62% ऑफ GDP बनाता है इफ़ यू इंक्लूड कंस्ट्रक्शन सेक्टर. कंस्ट्रक्शन हटाना चाहते हैं तो इसमें से 7% हटा दो तो आपका, या 8% हटा दो तो 54-55% जो है दैट इज़ कमिंग अप फ्रॉम द प्योर सर्विसेज सेक्टर. एंड इफ़ यू ऐड दिस 8% तो आपका कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करके ये है.
and it is because of this high growth rate that we have seen, is that what we have observed, that we have frog, or what we can say is that we have directly jumped from being an agrarian economy to a service led economy. Then यहाँ पर बात हो रही है आपकी employment की. Now if you talk about employment, if we talk about employment here, then within the employment, whereas we say that जो शेयर है आपका जीडीपी में वो सर्विसेज सेक्टर का बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो गया है, एंड इट इज़ नाउ द लीडिंग सेक्टर, बट that commensurate increase in employment has not happened, and it is because of the fact कि जो सर्विसेज सेक्टर है इसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो होती है वो लो होती है. ये ज़्यादा आपका यहाँ पर क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है, रिटर्न्स टू स्केल का ज़्यादा यूज़ होता है, these are much more expandable, these are much more scalable kind of activities. Therefore the employment ability, the capability of this particular sector to create massive employment is not there. और यही हमें दिखता है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो शेयर है इस पर्टिकुलर सेक्टर का वो सिर्फ इंक्रीज़ हुआ, एंड आज की डेट में 2014-2015 का भी अगर आप डेटा देखो तो वो 28-29% है, एंड आज की डेट में भी यहाँ पर 33% एक जगह लिखा हुआ है, बट इट इज़ 28% के अराउंड जो शेयर है वो सर्विसेज सेक्टर का है टिल द लास्ट डेटा दैट आई हैड सीन. सो आपका शेयर जो है दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है. 28% लोग मिलके इंडिया का 62% जीडीपी बना रहे हैं, विच शोज़ कि बाकी सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी कम है और इस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं है. और जो मेजर एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में आया है वो सेक्टर हैं जहाँ पर इन एनी केस एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और जहाँ पर स्केलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती. फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के अंदर स्केलेबिलिटी नहीं है तो आपको लेबर तो चाहिए ही चाहिए. ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर आपको लोग चाहिए. होटल एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर अगेन दिस इज समथिंग नॉट मशीन्स कैन नॉट डू, तो इसीलिए आपका वो चाहिए. कम्युनिटी पर्सनल सर्विसेज के अंदर अगेन यहाँ पर फिजिकल टच आ जाता है, जहाँ पर पर्सनल टच आ जाता है, जहाँ कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज हो जाती हैं, वहाँ पर तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है. बट समथिंग लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज, समथिंग लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये स्केलेबल है. एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, अब एक यहाँ पर आपको इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल. So not everyone can provide you classes in the sense of not everyone can teach as well. So it requires an extreme sharp amount of skill to basically teach. Something like as medical services, again you should have you should have first an MBBS and then an MS or an MD, and तभी जाके आप वो services दे सकते हो. So all of these niche areas require niche kind of skills. सो देयर फॉर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पहले जनरेट नहीं हो सकती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग सर्विसेज एक स्केलेबल है. एक बार आपने एक मॉडल बना दिया, एक बार आपने ग्रो करके एक ऐप बना दी या ज़ेरोधा करके ऐप बना दी, तो उसके बाद वो मिलियंस ऑफ लोग यूज़ कर सकते हैं. आपको बहुत कम लोग और हायर करने पड़ेंगे क्योंकि अगेन यू आर जस्ट मेकिंग कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन. तो इसीलिए इन सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं होती. सो कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैव लोअर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी गेन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट दैट इज देयर. इम्पैक्ट इन द ट्रेड सेक्टर. ट्रेड in India's service sector, as I told you in the initial paragraphs as well, that India has been able to align with the world, India has been able to associate with the world, integrate with the world because of the impact of its services. We'll talk about what kind of services have we exported and have we have imported, but at the same point of time this has been a niche area for India, especially IT and IT enabled services. एंड उसके अलावा BPO सर्विसेज, KPO सर्विसेज के लिए वी आर वेरी वेल नोन. एंड वन ऑफ द रीजन्स फॉर दैट इज दैट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग workforce in the world, because of which a lot of outsourcing that happens in India. So and this is visible in India's exports. So India ka services exports have boosted from $3 billion in 1980 to somewhere around $200 billion. अगर आप आज की बात करो तो $200+ billion का एक्सपोर्ट हम करते हैं just because from the services sector. Similarly imports भी हमारे काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं. So all you need to remember is you can remember the ballpark figure of $200 billion.
which is around 2019 के अराउंड हमारा ये फिगर था. एंड हमारा एक्सपोर्ट्स, हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं इसका. एंड what is more important is that the growth rate of India's export has been second to none except for say Ireland. हमारा जो ग्रोथ रेट है सर्विसेज का एक्सपोर्ट का, वो देखो वर्ल्ड में इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट. सो वी हैव बिटवीन 1995 टिल 2005 हमारा जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो 23% से ग्रो कर रहा था, और उसके बाद भी ग्रो किया बिटवीन 2005 एंड 2017 भी हम अराउंड 11% से ग्रो किए. बट ये ग्रोथ रेट कम क्यों हुआ है सारी कंट्रीज में? बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007. उसकी वजह से सबकी सारी कंट्रीज के अंदर ग्रोथ रेट कम हुआ है. बट स्टिल इफ यू सी, इंडिया का ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड सरपासेस इवन दैट ऑफ चाइना. So which shows that we have been doing really well in terms of our services exports, which is all that is mentioned here. And this is another thing. The share of services in India's total exports have been rising from 18% to 38% in 2017. So 38% of your total exports is coming from services. A very important data point that you need to remember, especially for this examination and your competitive examination. Then this is also visible, this data point is also visible in India's integration in world services export. So पूरी दुनिया के जो services export है उसके अंदर भी हमारा शेयर जो है वो अराउंड 1% से इंक्रीज होके 4% के अराउंड 3.5% हो गया है इन 2017. एंड हमारा जो परफॉर्मेंस है सर्विसेज सेक्टर के अंदर, दैट हैज़ बीन मच बेटर देन दैट ऑफ गुड सेक्टर. सो दैट इज़ अनदर थिंग दैट यू कैन प्रॉब्ली रिमेंबर, दैट हमारा जो परफॉर्मेंस है, डोंट नीड टू रिमेंबर डेटा पॉइंट, बट हमारा जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है दैट हैज़ बीन मच बेटर दैन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स. एंड दिस, if you want to summarize all of this in one line and one technical line, then this is the technical line that you should pick up. It is that India's revealed comparative advantage. Now if you remember comparative advantage theory क्या होती है कि आपका कहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है किस कंट्री के अंदर कम है और कहाँ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो. ठीक है. So Vartika, your mic is on. Yes. So what we see is that India का comparative advantage for services has increased by 50% in the last 20-30 years, whereas India का goods के केस में ये decline किया 17%. That basically shows that we are becoming even more efficient and we are gaining our comparative advantage in terms of services export, whereas in case of manufacturing or goods exports we have been losing our comparative advantage. This is a very important data point that you need to remember. Now as I told you कि within that particular basket of exports there has been a shift in India's export basket. पहले हम क्या करते थे, हम transport and yes Gunraj, I'm going to upload it on YouTube as well. So what we are also seeing is that traditionally जो हमारी जो services export होता था वो transport and travel होता था, कि हम ये services export करते हैं. ठीक है, कि बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो हमारा एक्सपोर्ट माना जाता है. ठीक है, ट्रैवल की हो गई या ट्रांसपोर्ट की हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारा एक्सपोर्ट माना जाता था. बट नाउ इट हैज़ शिफ्टेड टू कमर्शियल सर्विसेज. अब हम कमर्शियल सर्विसेज देते हैं. So this has been a result of India's the dynamics of India's economy, the changing dynamics, the emergence of middle class and the emergence of new age services that has come up. तो हमारा इसका जो शेयर था, इन सर्विसेज का जो शेयर था वो अराउंड 50% जो है इन्हीं सर्विसेज से आता था. अब इनका शेयर जो है सिर्फ 25% रह गया है. अब बाकी सारी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, which includes construction, finance, computers and business services. So all of these services we have been exporting and इनका जो शेयर है advertising, exhibition, accountancy, health services, अब इनका शेयर जो है 60% हो गया है in your overall service exports.
So there has been a clear diversification in the exports and emergence of modern subsectors, something like as financial, communication, computer and information services. But there are certain things that you need, there are certain caveats. So these are certain caveats that you might note. These caveats are that there are three issues that we see in India's export orientation of services. वो क्या important issues हैं, वो तीन क्या important issues हैं. एक कि although हम computer and information services provide करते हैं and we are really good at it, हम comparative advantage जो है वो धीरे धीरे lose कर रहे हैं इस particular sector के अंदर. दूसरा, हमारा बिजनेस सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट, बिजनेस सर्विसेज जो है वो बहुत बड़ी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं टू अदर पीपल एंड एक्सपोर्ट हम करते हैं. बट इस सेक्टर का भी जो रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज है ये 1 से कम है. रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज अगर आपका 1 से ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स कि आप ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा एफिशिएंट हो. अगर आप 1 से कम है तो ये दिखा रहा है कि आप इनएफिशिएंट हो अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज में. So if so it has been below for between 2000 and 2017, again something that we need to look at. And इंडिया का आज की डेट के अंदर भी जो रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज का जो एनालिसिस है वो अभी भी ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल सर्विसेज के अंदर है. सो therefore we need to diversify और अभी भी बहुत स्कोप है इंडिया का in export of these services and improving its competitiveness. So if you want to take down a point from this, इंडिया के पास आज भी बहुत ज़्यादा स्कोप है अपने सर्विसेज को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए. सो कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया सर्विसेज इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड. नाउ कम्स द अदर पार्ट ऑफ मोडालिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये अगेन दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन, बट आगे की चीज़ें समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव टेकन a particular page from a WTO article to explain you certain things. Now one of the things that you need to know is what is this GATS, ये General Agreement of Trade in Services क्या है, और इसके अंदर 4 मोड होते हैं. मोड 1, मोड 2, मोड 3 एंड मोड 4 क्या है. ये 4 मोड समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Let's understand what all are these modes. Mode 1 is called as cross border supply. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस बॉर्डर सप्लाई. इसमें क्या होता है, सपोज एक इंडियन है, ये इंडिया है और इंडियन सप्लायर है और ये यूएस है. मोड 1 का क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का मतलब ये होता है कि इंडियन अगर सर्विस बेच रहा है यूएस सिटीजन को, तो यूएस सिटीजन इज सिटिंग in US enjoying these services and Indian supplier is sitting in India and giving services. इंडिया में बैठे बैठे सर्विस प्रोवाइडर सर्विस कंज्यूमर को उसकी कंट्री में जाके सर्विस दे रहा है. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज BPO इंडस्ट्री, जहाँ पर हम बाहर के बैंक्स का, चेज फॉर एग्जाम्पल, I used to work in a BPO when I was your age. तो in the not your age, actually younger than you, फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के ब्रेक में I worked in a call center just to buy a laptop. तो I was working for Chase Manhattan Bank. Now this Chase Manhattan Bank में क्या है, मैं मैनहट्टन के बैंक के कस्टमर्स को सर्विसेज बेच रहा था सिटिंग फ्रॉम इंडिया. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, कि दूसरे के बॉर्डर में आप सप्लाई कर रहे हो बट आप अपनी कंट्री में बैठे हुए हो. देन मोड 2 देखते हैं क्या है. मोड 2 इज कॉल्ड एज कंजम्पशन अब्रॉड. कंजम्पशन अब्रॉड का मतलब क्या होता है कि आपका जो, सपोज इंडियन इज़ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, इंडियन जो है वो सप्लायर है और जो कंज्यूमर है वो यूएस का सिटीज़न है. अब कंजम्पशन अब्रॉड का मतलब ये है दैट कंज्यूमर जो है वो आपके कंट्री के अंदर आके सर्विस लेगा. सो सर्विस इंजॉय करने वाला कौन है, वो यूएस सिटीज़न है. सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो इंडियन सिटीज़न है. बट जो आपका जो यूएस का सिटीज़न जिसको सर्विस लेनी है वो इंडिया में आके सर्विस लेगा. टू गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस इज हेल्थ टूरिज्म.
हेल्थ टूरिज्म क्यों होता है यूएस से? क्योंकि यूएस का जो मेडिकल केयर है दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. देर आर नंबर ऑफ गुड मूवीज बेस्ड ऑन इट. देर इज़ अ मूवी, अगर बाद में कभी देखना, एक मूवी कॉल्ड सिको, एक डॉक्यूमेंट्री है माइकल मॉर की. एंड देर इज़ अनदर ब्यूटिफुल मूवी कॉल्ड जॉन क्यू, डेंजल वॉशिंगटन की है, ठीक है, which kind of tells about the harsh realities of the US medical system. एंड उसी को इनको सॉल्व करते हुए फिर ओबामा स्टार्टेड व्हाट इज़ कॉल्ड एज ओबामा केयर. ना अब यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो यूजुअली कनाडा जाते हैं या फिर से क्यूबा जाते हैं हेल्थ केयर के लिए. बट अगर उनको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज चाहिए होती हैं तो वो इंडिया आते हैं, क्योंकि इंडिया में द बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स आर देयर बीइंग ट्रेन्ड बाय इंडियाज़ मेडिकल सिस्टम एंड मेडिकल जो नेशनल मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सुपीरियर डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं. अनफॉर्चुनेटली वो फिर MD और MS करके फिर वो US ही चले जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिकल टूरिज्म के लिए फन फैक्ट, बेस्ट मेडिकल टूरिज्म पार्ट्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, China and Pakistan is well known. Pakistan because of the fact of poverty and China because of its capital punishment. So if you remember this scene from Squid Games, जहाँ पर organ trade हो रहा होता है, वहाँ पर it's very common. So this is medical tourism जैसी situation के लिए, consumption abroad. Then you have mode 3. Mode 3 means commercial presence. Commercial presence क्या है कि Indian आपका supplier है सर्विस का और वो यूएस में जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो यूएस में अपनी कंपनी खोलेगा. नाउ यहाँ पर कमर्शियल प्रेजेंस की बात जब हम बात करते हैं तो हम कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिटीजन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ SBI ओपन्स अ सब्सिडरी इन यूएस, दैट विल बी कमर्शियल प्रेजेंस. If Tata opens up big basket in US, that will be commercial presence abroad, where foreign company is basically या तो बाहर की फॉरेन कंपनी इंडिया में आए वो भी कमर्शियल प्रेजेंस है, या फिर इंडिया की कंपनी बाहर जाए वो भी कमर्शियल प्रेजेंस है. फॉर एग्जांपल, अगर मैकडोनल्ड्स इंडिया में अपनी सब्सिडरी सेटअप करता है, या फिर से टेक एनी इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में आके अपनी सब्सिडरी होल्ड करती है, सो या फेसबुक आता है, तो दीज आर कमर्शियल प्रेजेंस वेयर सब्सिडरी सेटअप की गई हैं बाहर की कंपनी ने इंडिया के अंदर, और फिर वो बाहर की कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है सर्विसेज. ठीक है, इंडिया के केस में मैंने आपको ऑलरेडी रिवर्स एग्जांपल बता दिया कि SBI जो है अपनी बैंकिंग सर्विसेज अपना एक कंपनी खोल रहा है यूएस के अंदर एंड उससे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है यूएस सिटीजन्स को. ठीक है, सो दिस इज मोड 3 एंड मोड 4 इज कॉल्ड एज प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज पर्सन. इसमें अगर यूएस के सिटीज़न को कोई सर्विस चाहिए, कंज्यूमर है यहाँ पर, तो इंडिया का जो सिटीज़न है, इंडिया का जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो यूएस जाके सर्विस प्रोवाइड करेगा. इसका एग्जांपल है आपके H1B वीज़ाज़, L1 वीज़ाज़, जहाँ पर इंडियन जो कंप्यूटर वो होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो यूएस में जाके यूएस की कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं या इंडियन कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस सिटीजन्स को. So these are the 4 kinds of modes that are there in GATS. अब now it is very natural for you to understand कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज किस में है. इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है मोड 1 के अंदर एंड मोड 4 के अंदर. दीज आर 2 एरियाज़ जहाँ पर इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जिसके लिए ऑलमोस्ट नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसीलिए बहुत सारी आउटसोर्सिंग इंडिया में हो जाती है. एंड दूसरा मोड 4 इसलिए क्योंकि मोड 4 के अंदर इंडिया के पास बहुत सारे स्किल्ड वर्कफोर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं इंडिया के अंदर यू हैव इंजीनियर्स. तो उसकी वजह से बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स जो हैं दे कैन मेक एडवांटेज ऑफ मूविंग अब्रॉड and then providing services to other country citizens. So ये आपके 4 modes हैं. Now with this background now you will be able to understand कि ये क्या discussion हो रहा है. अगर आपके पास ये background नहीं है और आपने ये समझा नहीं है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये modes चल क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, किस बारे में बात हो रही है. तो अगर now you can understand that mode 1 and mode 4 are particularly important for India's comparative advantage.
in skilled and labor intensive services. Labor intensive services like BPO and skilled services like आपके मोड 4. तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है बिजनेस सर्विसेज का और कंप्यूटर सर्विस. बिजनेस सर्विसेज जो है वो बेसिकली इंक्लूड करता है BPO एंड योर KPO इन सर्विसेज. तो इसीलिए बिजनेस सर्विसेज आपको दिखाई देगा कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. एंड अब इसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम, इफ़ यू सी कि हमारा अगर US के अंदर देखो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए आपको H1B वीज़ाज़ मिलते हैं. तो उसके अंदर इंडिया जो है उसका मेजर शेयर रहता है US के अंदर. 51% जो है वो इंडियंस के पास है. इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज होते हैं. फॉर एग्जांपल विद इन अ कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है TCS जैसे या इन्फोसिस जैसे, जो US के अंदर भी है और इंडिया के अंदर भी है. तो अब इंडिया के अंदर पहले वो इंजीनियर काम कर रहा था, फिर उसको उसका मूवमेंट हो गया कि आप US के ऑफिस से काम करो. दैट पर्सन विल बी गिवन एज एन L1 वीज़ा, क्योंकि आप इंट्रा कंपनी ऑपरेट कर रहे हो. ठीक है, इंट्रा कंपनी आपने ऑपरेट किया है, चेंज किया है. तो उसके अंदर भी मेजर जो शेयर है उसके अंदर 10% जो L1 वीज़ाज, तो बेसिकली US में कोटाज होते हैं इन वीज़ाज़ के, और इन L1 एंड H1B वीज़ाज़ के अंदर इंडियंस को का बहुत ही बड़ा रोल है. एंड बहुत सारे इंडिया को एलोकेट होते हैं क्योंकि सप्लायर्स बहुत सारे हैं, मतलब इंडिया के अंदर ये सर्विसेज सप्लायर बहुत सारे हैं, और बहुत सारी ये कंपनीज़ के नाम आपको पता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यूजेज होता है. Then apart from that there are new age services. There are other services also in which India is also kind of good. For example, अगर आप देखो मोड 4 के अंदर ही सिर्फ कंप्यूटर सर्विसेज नहीं है, हेल्थ केयर सर्विसेज, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, एजुकेशन सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारा खुल गया है. For example, a lot of my friends have told me to shift to the Gulf or Middle East या फिर स्पेशली सऊदी अरेबिया, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा, डॉक्टर्स एंड टीचर्स, माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर, तो टीचर्स एंड डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पे किया जाता है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आई मीन, you are not living in a country and you are living in a theocratic state, so that's again a problem फॉर शिफ्टिंग. बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजेज है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इंडिया की. कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक हेल्प, नर्सेज एंड पैरामेडिकल. नर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया के अंदर एक स्टेट है केरला, जहाँ पर मलयाली आपके जो नर्सेज होती हैं, दे आर वेरी फेमस थ्रू आउट दी वर्ल्ड. इनफैक्ट आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे आपको दिखाई दे जाएगा कि बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो केरला से आती हैं. सो इंडिया का जो मेडिकल जो आपका सर्विसेज है और पैरामेडिकल सर्विसेज है, दैट इज़ ऑल्सो वेल नोन. और कई बार ऐसे हमारे वो भी नोशंस भी बन जाते हैं, जैसे इंडिया के लिए इंजीनियर्स और इंडिया की नर्सेज. वैसे ही यू माइट, अगर किसी ने नहीं सुना कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस मेड्स कहाँ से होती हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की फेमस मेड्स फिलीपींस से आती हैं. ठीक है, तो हर कंट्री का कई बार कुछ वो बन जाता है कि अच्छा इस कंट्री में तो यही मिलेगा. ठीक है, तो जैसे मेड्स के लिए फिलीपींस आपका बहुत ज़्यादा फेमस है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज़ें मेंशन रखी हैं ऑलरेडी यहाँ. लेट्स कम टू मोड 2 एंड मोड 3. मोड 2 एंड मोड 3 के अंदर भी यू हैव अपकमिंग एरियाज. फॉर एग्जांपल मोड 2 के अंदर आपका एज आई टोल्ड यू मेडिकल टूरिज्म हो गया, आपका टूरिज्म इन जनरल, एजुकेशन सर्विसेज. दीज आर अगेन एरियाज जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, I mean, there is this playlist of mine which is completely based in English on econometrics. एंड जब मैं अपना YouTube का वो देखता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो व्यूज़ हैं वो टर्की से आते हैं. टर्की, चाइना, नाइजीरिया, सो अफ्रीकन कंट्री से बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर. सो what again, this is what we are exporting via YouTube. I am exporting this particular service to the rest of the world. So this is again an area जहाँ पर इंडिया जो है काफ़ी अच्छा कर सकता है. Then मोड 3 के अंदर भी इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अब आना शुरू हो गया है, बिकॉज इंडियन कंपनीज जो हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं एंड दे आर नाउ सेटिंग अप देयर ऑफिसेस ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल अगर आप नाइका देखो या आप दिस कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी
जेनोटी है, देन जो सलून्स के अंदर CRM देती है, देन यू हैव बिल डेस्क, एंड देन बहुत सारी सर्विसेज हैं, या रेजर पे जैसी आपकी कंपनीज हो गई. तो ऑल ऑफ दिस इज़ बेसिकली अगेन जहाँ पर इंडियन कंपनीज जो हैं वो बाहर जाके अपना सब्सिडरी सेटअप कर सकती हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं है. और दीज आर दी मेन एरियाज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, IT. बाईजूस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का, बाय द वे, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर अब हर कोई कंट्री चाहता है कि यार मेरे लोग ज़्यादा एम्प्लॉय हों, बाहर से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय ना हो. और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है कि अच्छा इंडियन जो हैं वो इन सारी चीज़ों के अंदर आके मार्केट कैप्चर कर लेंगे. तो इसीलिए अ लॉट ऑफ कंट्रीज पुट बैरियर्स. अब जैसे ट्रेड के लिए आप क्या बैरियर लगाते हो? टैरिफ का बैरियर लगा देते हो. अब अगर आपको सर्विसेज पे बैरियर लगाना है तो आप कैसे बैरियर लगाओगे? आप बैरियर लगाओगे जैसे यूएस ने किया. यूएस कई बार क्या कहता है कि हमने जो कोटा दिया है H1B वीज़ाज़ का, L1B वीज़ाज़ का, उसको कम कर दिया, तो अपने आप ही कम लोग आ पाएंगे. देन कई बार आप इंडिया की डिग्री को रिकग्नाइज ना करो. फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई से आर्किटेक्ट है, आपने कहा कि बॉस हम तभी आर्किटेक्चर वाले बंदे को हायर करेंगे जब उसने वो 5 साल की डिग्री करी होगी. अगर इंडिया में मिलती 4 साल की डिग्री है तो आपने उसको हटा दिया मार्केट से. देन आप another way in which US has been kind of out competing or closing Indian people's access, especially mode 4 में, कि आपने मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज़ कर दें. अब कोई कंपनी L1 वीज़ा से क्यों लेके आती होगी अपने एम्प्लॉय को? क्योंकि US के अंदर अगर आप एम्प्लॉय ला रहे हो तो US के अंदर आप $60,000 दे दो पर ईयर, विच इज़ $5,000 पर मंथ दे दो, और उससे आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हो इंडिया से लाने के बाद. और यूएस में जो अगर आपको सेम बंदा यूएस का अगर आपको हायर करना पड़े तो $120,000 देने पड़ेंगे. अब यूएस ने क्या किया? यूएस ने कहा कि बॉस अगर आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए किसी को भी हायर कर रहे हो तो आप उसको 120 या $120,000 दोगे पर ईयर. तो आपने अपने आप ही कॉस्ट बढ़ा दी. फर्म्स जो हैं वो इंडियंस के पास इसलिए जा रही थी क्योंकि इंडियंस जो हैं वो सस्ते थे. अब आपने मिनिमम एक तरीके की जो वेज है वो ही इंक्रीज़ कर दी, तो अब वो बंदा सोचेगा कि यार मैं इंडियन को हायर करूं या यूएस सिटीज़न को हायर करूं. तो उस सेंस में अगेन यू हैव क्लोज द मार्केट. सो issues like quantitative caps on visas, discretionary hikes on visa fees, restrictive requirements on entry and operation, labor market tests, then lack of recognition of qualification, opposition from regulatory bodies. All of these are evidences कि किस तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से आप सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करते हो दूसरे कंट्री के. तो और यूएस जो है वो कभी बहुत बार ये चीज़ें करता है. और EU भी एक नई चीज़ लेके आया है. EU का GDPR करके क्या कहते हैं, एक उनका डेटा प्रोटेक्शन का वो होता है, चार्टर है GDPR करके, और बहुत स्ट्रिक्ट चार्टर है कि आप किस यूज़ के लिए डेटा यूज़ कर रहे हो, कैसे आप फ़ोन करोगे लोगों को, किस टाइम में आप करोगे, क्या क्या आप नहीं कर सकते हो, डेटा आप नहीं बेच सकते हो. बहुत ज़्यादा डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, डेटा राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है यूरोपियन यूनियन में. अब इंडिया के अंदर कोई डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, तो इसीलिए यूरोपियन कंपनीज अगर इंडिया में आउटसोर्स करना चाहती हैं तो यूरोप कहता है कि बॉस पहले आप अपना डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाओ, और अपने डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि आप यूरोपियन सिटीजन्स का डेटा हैंडल कर रहे हो, तो इसलिए आपको अपने जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा वो GDPR का स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा. सो दिस इज अगेन अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ विच India is not able to harness a lot of potential in mode 1 and mode 4. Therefore it is suggested that mode 2 के अंदर भी बहुत ही बड़ा promising area है health, tourism, education. इसको हम explore कर सकते हैं. Then you have a paragraph on IT BPO services. You can read that particular paragraph. Examination point of view से मुझे ज़्यादा important नहीं लगा कि IT BPO services के अंदर क्या चल रहा है. Now coming to FDI, ठीक है, FDI का अगर हम comparison देखें, now if you talk about FDI,
तो FDI के अंदर भी बहुत ज़्यादा FDI आया है सर्विसेज सेक्टर के अंदर, एंड अगेन इंटीग्रेशन जो है वो सर्विसेज सेक्टर का बहुत ज़्यादा FDI के थ्रू भी हुआ है. इनवर्ड FDI भी एंड आउटवर्ड FDI भी. अब ये पहली बात, इनवर्ड FDI क्या होता है? इनवर्ड FDI होता है जब बाहर की कंपनी इंडिया में आके कंपनी अपना अपना सेटअप करती है. फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया या वॉलमार्ट हो गया या आइकिया हो गया. तो ये सारे एग्जांपल आपके हो गए इनवर्ड FDI का सर्विसेज सेक्टर के अंदर. आउटवर्ड कैसे? जैसे इंडिया की कंपनीज, जैसे मैंने आपको बैंक्स के बारे में बताया कि वो बाहर जाके सेटअप कर रही हैं, या बाईजूस का एग्जांपल दिया या अनअकैडमी का एग्जांपल दिया. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आउटवर्ड FDI ऑफ सर्विसेज. तो इंडिया, इफ यू सी एट इन 2016-17, 60% ऑफ द FDI, अगेन एन इम्पॉर्टेंट फिगर. एक फिगर मैंने आपको GDP की बताई, एक एम्प्लॉयमेंट की बताई, एक मैंने आपको 38% एक्सपोर्ट्स बताया, ठीक है, एंड 60% ऑफ FDI इनफ्लोज. दीज आर 4 डेटा पॉइंट्स गाइज, यू नीड टू रिमेंबर. आप इन डेटा पॉइंट्स को मिस आउट नहीं कर सकते हो. स्पेशली 2016-17 की फिगर्स जो आपके डेटा के अंदर गिवन है वो तो आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए. सो इफ़ यू सी 2016-17 के अंदर 60% ऑफ FDI इनफ्लोज वॉज इन दी services sector, and services sector का FDI is growing much faster than manufacturing FDI, and the main areas are communication, business, financial services. and FDI approval जो है उसका बहुत सारे examples हैं. for example जापान का entry into India's construction of bullet train, Amazon logistics के अंदर, and Google का broadband services in area of broadband services. आउटवर्ड FDI के बारे में बात करो तो आउटवर्ड FDI के अंदर भी इंडिया काफ़ी इंक्रीज़ करा है, और इसमें आउटवर्ड FDI में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है IT इनेबल सर्विसेज. फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गया या TCS हो गया या कॉग्निजेंट हो गया, ये सारे आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं. अब कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल एयरटेल जो है इज़ अ मेजर प्लेयर इन अफ्रीकन कंट्रीज. तो दिस इज़ अगेन आउटवर्ड FDI. तो यहाँ पर भी रोल जो है इंडियन कंपनीज का बहुत बड़ा. कमिंग टू सर्विसेज लिंकेजेस, वैल्यू एडिशन, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी. तो जो हमारा डिस्कशन था अबाउट व्हाट इज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ, और व्हाट इज़ द लिंकेज, व्हाट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सर्विसेज सेक्टर and the manufacturing sector or the overall economy. तो वो इंटीग्रेशन कैसा है, एंड वी विल सी दैट ये इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड दिस इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो कितना वैल्यू ऐड कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस वैल्यू एडिशन बाहर कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बट इंडिया के केस में वैल्यू एडिशन कम है. सो एज आई गिव यू द एग्जाम्पल कि जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज कि आपने मैन्युफैक्चर किया कोई स्वीट, बट आपने क्या स्वीट मैन्युफैक्चर करते हुए कुड यू हैव यूज सम काइंड ऑफ एनालिटिक्स कि मार्केट में इस तरीके का डिमांड है, कुड यू हैव यूज सम काइंड ऑफ एनालिटिक्स कि इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ चैनल को और कर सकता हूँ. तो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यू माइट हैव डेफिनेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एज रॉ. तो रॉ क्या कर रहा है? रॉ कोल्ड प्रेस आपके जूसेस दे रहा है. तो अगेन, डू यू थिंक दैट रॉ इज प्योरली a manufacturing company? No, a lot of its value addition is coming from advertising. A lot of its value addition is actually coming from the use of technology and the use of analytics there. Similarly, take the example of say something like a Zepto or Swiggy or Ola. ये मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को on the basis of manufacturing they are leveraging technology to take the product to the consumer. So all of these show you that there is a strong linkage between the manufacturing sector and the services sector, but in case of India this is found wanting or not as well utilized as in case of foreign countries. Then so the linkage is as important today as increasing services is an increasingly constituting an integral part of the production and delivery process in manufacture, research and development. तो इन सब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और जो हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हम कह रहे हैं कि हमें मेक इन इंडिया करना है, उसके लिए मेक इन इंडिया के लिए सर्विसेज विल बिकम
और सर्विसेज का ग्रोथ विल बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन मेक इन इंडिया. सर्विसिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग. तो अगर आप देखो कि सर्विसेज अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ग्लोबल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एक्सपर्ट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 33% जो उनका बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का अगर वैल्यू एडिशन 100 रुपीज़ का है, तो उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के 100 रुपीज़ के वैल्यू एडिशन में 33 रुपीज़ जो है और 33% जो है वो इट्स कमिंग फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन. डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्योंकि ये इंटरलिंकेजेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसीलिए क्योंकि बेसिकली इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, इट्स बेसिकली कि मैन्युफैक्चरिंग है और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इतने डेवलप नहीं हो पाए कि उनको पता ही नहीं है कि सर्विसेज कैसे यूज़ कर सकते हैं. टेक द केस ऑफ से हल्दीराम. हल्दीराम छोटी सी एक फर्म, छोटी सी एक चांदनी चौक से उठ के एक स्वीट शॉप शुरू हुई, एक बहुत ही बड़ी प्लेयर बन गया धीरे धीरे आते आते 2000 और बीच में इनकी फैमिलीज़ जो हो गई, इनकी 4-5 पार्ट्स हो गए थे. 2000 में आके इन्होंने सारी फैमिली को वापस जोड़ा और आज की डेट में वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में और 5 से 6 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई. बट वो क्यों बनी है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस ऑफ सेटिंग अप कंपनीज सर्विसेज के बेस के ऊपर. ठीक है, वैल्यू के ऊपर किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो हर कंट्री के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट हो. तो दैट शोज यू द एग्जाम्पल ऑफ हाउ services sector is has a key important role in manufacturing as well. Then, so if you see the share of services value addition in India's gross exports was over 50% in 2015. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सर्विसेज का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब जो वैल्यू एडिशन इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट के अंदर देख रहे हो वो ट्रेडिशनल सर्विसेज से नहीं आ रहा. ट्रेडिशनल जो आपकी सर्विसेज होती थी, सेगमेंट्स होते थे, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, उससे हट के अब आप मॉडर्न सर्विसेज की तरफ भी जा रहे हो. सो आई टी इनेबल्ड सर्विसेज जो है वो भी अब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स योर वैल्यू, टुवर्ड्स योर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स. आई हैव मार्क्ड इट वॉट एवर इज़ इम्पोर्टेंट. वन ऑफ द की एरियाज इज़ जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया के केस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की, वो इंडिया की ना तो आईटी इनेबल सर्विसेज को ज़्यादा पिकअप कर पा रही है और ना ही वो R&D कर रही है. तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया के खुद की सर्विसेज की जो बेनिफिट्स है उन्हीं को यूटिलाइज नहीं कर रहा है. बाकी दुनिया इंडिया की सर्विसेज ले रहा है और सर्विसेज को यूज़ करके अपना एक्सपोर्ट कर रहा है. बट इंडियन की खुद की जो फर्म्स हैं वो R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रही, बिजनेस सर्विसेज में इन्वेस्ट नहीं कर रही और वो लिंकेजेस जो हैं वो इंडिया के वीक हैं. सो ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर वैल्यू एडिशन का एक मेजर कंसर्न है वेदर मैन्युफैक्चरिंग इज इन इंडिया इज सफिशिएंटली इंटीग्रेटिंग सक्सेसफुल services such as IT. So that is something that is needed, or we need to create this value addition over the top of manufactured products so that our manufacturing exports also increase. Liberalization of services in India. अगर आप सर्विसेज देखो तो हमने धीरे धीरे इंडिया के अंदर सर्विसेज को लिबरलाइज किया है. टेलीकम्युनिकेशन के अंदर अब हम 100% FDI लेके आ चुके हैं. बैंकिंग के अंदर 74% FDI है. इंश्योरेंस के अंदर 49% FDI है. तो हमने धीरे धीरे FDI की जो लिमिट्स हैं अपनी खोलनी शुरू करी हैं. बहुत सारे सेक्टर्स में ओपन है, 100% है. और अब ऑटोमेटिक रूट्स, दो मैंने बताया था कि लास्ट सेशन में कि देर आर 2 रूट्स, ऑटोमेटिक रूट्स एंड अप्रूवल रूट्स. अप्रूवल रूट बेसिकली होता है अगर आपका 775 या $1 बिलियन से ऊपर की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाता है जो 1 हफ्ते में क्लियर करेगा. उससे कम होता है तो कई बार यूजुअली ऑटोमेटिक रूट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ठीक है, तो बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट एरियाज इसीलिए आपने इनको ओपन अप किया है एंड ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ लेके आया. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर सोचो अमेजॉन कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी लेके आया. ठीक है, कंपनीज से कंपनीज लाइक योर वॉलमार्ट, ठीक है, जो इंडिया का पूरा रिटेल या लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकती है. ठीक है, आइकिया जैसी कंपनी
all of these companies have had a huge impact. Similarly many services के अंदर अभी भी लिबरलाइज होना बाकी है. ठीक है, आई विल शो यू विच इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको टेलीकॉम वगैरह का एग्जांपल बताया, और जहाँ जहाँ आपने ओपन अप किया है और जहाँ पर गवर्नमेंट का भी प्रेजेंस है. सो इफ़ यू सी दैट देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फॉरेन प्लेयर्स एंड देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक प्लेयर्स, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेटर्स भी ले आए हैं. रेगुलेटर्स लाइक ट्राई एक रेगुलेटर है, या IRDA एक रेगुलेटर है. इस तरीके से आप रेगुलेटर्स ले आए हो टू बेसिकली हैव एन एम्पायर टू एडजुडिकेट विद इन द मोडालिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पर अभी भी स्मूथ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मल्टी ब्रांड रिटेलिंग के अंदर स्मूथ नहीं है, अभी भी 100% नहीं है. मल्टी ब्रांड रिटेलिंग होती है, देर इज समथिंग कॉल्ड सिंगल ब्रांड रिटेलिंग. सिंगल ब्रांड रिटेल का आपका एग्जांपल होता है कि आप एडिडास के शोरूम में गए तो आपको सिर्फ एडिडास के प्रोडक्ट मिल रहे हैं. प्रोडक्ट बनाने वाला और प्रोडक्ट बेचने वाला जब सेम आदमी होता है या सेम कंपनी होती है, उसको बोलते हैं हम सिंगल ब्रांड रिटेलिंग. बट इमेजिन गोइंग टू से what do you call something like your वो क्या है, लाइफस्टाइल, या फिर लाइफस्टाइल ही देख लो. तो उसके अंदर क्या है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइफस्टाइल के अंदर मिल रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, बट वो बेच कौन रहा है, लाइफस्टाइल बेच रहा है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी ब्रांड रिटेलिंग कि मैन्युफैक्चरर और है और सेलर कोई और है. सो इंडिया के केस के अंदर हमने फुली अभी तक मल्टी ब्रांड रिटेलिंग नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हमें डर है कि इंडिया की जो छोटे छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ ये बड़ी बड़ी कंपनीज रह जाएंगी जो हर चीज़ बेचेंगी. सो यहाँ पर अभी भी एक इरिटेंट है. लीगल सर्विसेज के अंदर अभी भी FDI अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर लीगल सर्विसेज के अंदर अलाउ कर दिया तो ये जो ट्रेडिशनल आपके कोर्ट के बाहर जो सूट पहन के बैठे हुए होते हैं लॉयर्स, ये नहीं चल पाएंगे. एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है विल गो टू फर्म्स जैसे यू माइट हैव सीन सूट्स और बॉस्टन लीगल. तो इस तरीके की फर्म्स प्रोफेशनलिज्म के साथ आने शुरू हो जाएंगे. नॉट टू से कि इंडिया में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इंडिया में अंदर भी प्रोफेशनल लीगल फर्म्स बहुत सारी हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे चीज़ें अभी भी नहीं आई हैं जो बाहर आपको अवेलेबल मिलती हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन के अंदर भी अभी भी रिस्ट्रिक्शन है कि बाहर की कंपनीज या बाहर की जो एंटिटीज़ हैं वो इंडिया में आके अपने कैंपसेस सेटअप कर पाएँ. Then apart from that, when it comes to your exports or engagement in multilateral and regional engagements, तो हमारा मेन फोकस रहा है कि बाकी दुनिया को हम बोलते हैं कि बॉस हमारे लिए मोड 1 और मोड 4 खोल दो, और बाकी सारी कंट्रीज़ हमें बोलती हैं कि बॉस अपना मोड 2 और मोड 3 खोलो, क्योंकि वहाँ पर उन कंट्रीज़ का बेनिफिट है. ठीक है, बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर अपनी दुकान सेटअप करना चाहती हैं, बाहर की कंट्रीज चाहती हैं कि इंडियन जो है वो हमारी सर्विस ले. यहाँ हम बेसिकली अपनी कंपनी इंडिया के अंदर सेटअप करें मोड 3 के अंदर, और हम अपनी सर्विस लें. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वर्ल्ड चाहता है कि इंडिया भी अपनी मार्केट को ओपन करे. सो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अग्रीमेंट्स होते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होते रहते हैं. वन ऑफ दीज राउंड्स अगेन विच आई टीच इन WTO इज़ द दोहा राउंड, जिसके अंदर काफ़ी सारी इसके ऊपर नेगोशिएशन हुई है. Just read through whatever sections that I've marked. I mean, just to have a broad idea of where we are signing certain agreements and what has happened. Then, in terms of COVID and its impact, अगर आप देखो तो COVID का सबसे ज़्यादा impact जो है वो सर्विसेज सेक्टर पे रहा है. सर्विसेज सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए रहा है, ओवरऑल हमारा 2021 के अंदर जो GDP है वो गिरा -6.6% से. उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो सर्विसेज सेक्टर पे है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर इज़ कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज. कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज की वजह से इंडस्ट्रीज़ लाइक ट्रेड एंड होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है ये सारी बंद हो गई. ओला, ऊबर, ये सब कुछ क्लोज डाउन हुआ. सो बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज सेक्टर हैड टेकन अ ह्यूज blow in terms of the impact of COVID. And even by 2021-22 अभी तक हम 100% of 2019-20 के लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे in terms of services.
So that means we have lost exactly around 2 years because of COVID 2020-21 and 2021 or 21-22, just to come back to 2019-20 के level पे, और अभी भी पूरा नहीं पहुंचा था. So which essentially shows that COVID had disproportionately impacted the services sector. ठीक है, क्योंकि ये सारी सर्विसेज, लॉजिस्टिक, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, इन सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ा था इम्पैक्ट. But at the same point of time, there are new services, especially coming because of IT enabled services. So IT services की वजह से आज की डेट में you have these IT enabled services या work from home, और जिसमें और नाउ यू हैव दिस एनालिटिक्स की जॉब्स आनी शुरू होंगी, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस. सो ऑल ऑफ दीज आर न्यू एरियाज जहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम करके आप पूरा अपना काम कर सकते हो. यू डोंट नीड ऑफ साइट, आपको ऑन साइट जाने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्किंग हैज़ चेंज द लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड बिकॉज ऑफ विच there is a huge advantage that India can reap here. But at the same point of time, if you really want to reap these benefits, then you need to also have the best of data protection acts. And now you have these new areas जहाँ पर हम और ज़्यादा supply कर सकते हैं AI का, blockchain का, automation का, again areas where we can do good. देन कोविड की वजह से एक और एरिया जहाँ पर इंडिया हैज़ डन रियली वेल इज़ हेल्थ केयर. यू हैव दीज हेल्थ केयर स्टार्टअप्स कमिंग अप. आपके बहुत सारी एप्स आ गई हैं हेल्थ केयर की. फॉर एग्जांपल अपोलो 24/7 इज़ वन ऐप दैट आई यूज़. देन यू हैव 1mg जैसी एप्स, और जहाँ पर अब टेली मेडिकेशन भी हो रही है आपकी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो बहुत सारे इंडिया के अंदर मशरूम कर गए हैं, एंड आप वर्ल्ड के लिए भी आप डायग्नोस्टिक्स कर सकते हो. So all of this is another area where we have done well. And the government is also promoting all of these new companies through Champions Services, Startup India, Atmanirbhar package. तो इन सारी services को भी हमने target किया. So this is all about. Then you can just go through the conclusion. I will just send you this particular reading as well. And this is an important reading, guys. Again, to give you a small brief, what you need to remember is India का GDP का contribution, India में employment का contribution, exports में contribution, FDI में contribution, then आपका value addition के अंदर कौन कौन से areas हैं जो आपका contribute करते हैं, तो disaggregated level पे क्या है, and then आपका trade के अंदर in general कहाँ हमारा trade के अंदर importance है services sector का, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गैट्स, एंड कहाँ पर इश्यूज इरिटेंट्स आ रहे हैं अभी तक गैट्स के अंदर भी. सो दिस इज़ योर ओवरऑल एनालिसिस, एंड देन फाइनली कोविड का इम्पैक्ट. सो दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ with respect to the other readings, as I've told you that either you can skip the two readings that we are left with. I mean, again, depending on whether you're comfortable doing that or not. But अगर जितना हमने किया है उससे I sincerely think that you'll be able to attempt 6 or 7 questions out of 8 questions. ठीक है, एक ही question है जो probably नहीं कर सकते, and that is more than sufficient for you at this particular stage. Then with respect to writing answers, since what I also teach in my classes, focus more on presentation. ठीक है, प्रेजेंटेशन के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए. डेटा पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, टेबल्स कैसे बनाओगे, फ्लो चार्ट्स अगर आप डाल सकते हो, कुछ इनोवेटिव कुछ डायग्राम डाल सकते हो, दैट शुड बी द फोकल पॉइंट ऑफ योर एनालिसिस इन इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स अ वेरी ड्राई पेपर टू चेक. So until unless you're willing to innovate in your examination, you'll not get that 9 और जैसे बहुत सारे मेरे students का 9 या 8 आता है. It's majorly because of the fact that they are good at presentation. It is perhaps even more important than answering the question. So at times, but that doesn't mean that you answer relevant things. So this is where I think I will take a break from this. I wish you all the best, and once your exam is over, then we can always catch up. So
Okay guys, thank you very much. All the best for your examination.